morning to all. Myself Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is titration of a weak acid with a strong base. If we talk about the weak acid, then we had taken the acetic acid here, and a strong base is NaOH. Weak acid कौन? Acetic acid. Strong base कौन? NaOH. So it is a titration between the NaOH and the acetic acid. Now this type of titration may be represented by the general equation, that is Ha plus OH negative H2O plus A. ये OH plus H मिलके H2O बना, A negative निकला. Here Ha represent a weak acid. Ha is a weak acid. Weak acid कौन? जो dissociate completely नहीं होता है, poorly dissociate होता है. That is why it is written in the form of the undissociated form. इसलिए undissociated में लिखा है because it is a weak acid, तो वो partially dissociate होगा, completely dissociate नहीं होगा. There are three important differences between the titration of weak acid with a strong base and a strong acid with a strong base. जो हमने NaOH और HCl का titration देखा था, उससे इसमें three differences हैं. क्या है? Because दोनों में acid है. पहला, the H plus is small at the start of the titration, but pH will be greater. जब हम ये स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड को देखते हैं तो H प्लस बहुत स्मॉल होता है जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन pH ज्यादा होता है. नोट दैट इन 0.1 नॉर्मल HCl, द स्टार्टिंग pH इज 1. वी हैड सीन स्टार्टिंग pH कितना था? 1 था. Whereas in the titration of 0.1 normal acetic acid, the starting pH is 2.87. Because acetic acid is a weak acid, it is poorly dissociated, hence it gives smaller concentration of H plus ion. So, and the second is, as alkali solution is added to the weak acid, the salt form produces common ion effect, so that the dissociation of weak acid is suppressed. मेनली थ्री डिफरेंसेस है. पहला डिफरेंस ये है कि जब हम एसिटिक एसिड के टाइट्रेशन की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड के टाइट्रेशन में H प्लस जो रहते हैं वो स्मॉल होते हैं. क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, वो कंजूस है, वो अपने सारे H नहीं देगा. ठीक है, वीक है वो, तो उसका जो pH है, जो वीक एसिड के pH होते हैं वो 1 से कभी स्टार्ट नहीं होते. स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl, तो उसका pH कहां से स्टार्ट होगा? 1 से. जो एसिड की सबसे हाईएस्ट वाली रेंज है 1, वहां से स्टार्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के pH. वीक एसिड के pH 1 से स्टार्ट तो होंगे नहीं, 2.87, 2.37. सो पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट होता है जिसके कारण इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है. व्हेन NaOH is added to acetic acid, there is formation of the salt. CH3 एसिटिक एसिड है, ये इसे डिसोसिएट होगा. जब हम NaOH को ऐड करेंगे इस एसिटिक एसिड में तो वो बनेगा CH3CON, एक सॉल्ट बनेगा. जो सॉल्ट जो है वो इस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होगा. अब ये देखो CH3COH है, उसके अंदर हमने ऐड करा है तो वो डिसोसिएट हुआ, सॉल्ट बना, दोनों ने मिलकर सॉल्ट बनाया, NaOH ने मिलकर एसिटिक एसिड के साथ सॉल्ट प्रोड्यूस किया. ये जो सॉल्ट है ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ये दोनों कॉमन हो गए. ठीक है, CH3COH कॉमन, तो क्या हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, तो ये पोरली डिसोसिएट हुआ और जो सॉल्ट है ये स्ट्रांगली डिसोसिएट हुआ. The dissociation of acetic acid is thus suppressed to the hydrogen ion concentration is decreased or pH of the solution is greater than that observed in the titration of HCl with NaOH. इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड हुआ है, H प्लस आयन नहीं निकल पा रहे हैं, तो जो इसका pH है वो ज्यादा होगा. pH किस तरफ जाएगा? अल्कलाइन की तरफ जाएगा. तो जो HCl का pH 1 से स्टार्ट हुआ था, इसका pH 2.87 से स्टार्ट होगा. क्योंकि ये वीक एसिड है, ये पूरी तरह से इसने H नहीं दिए तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया है. थर्ड इज इन द टाइट्रेशन ऑफ HCl विद NaOH, pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज 7. जब हमने देखा था HCl के साथ NaOH का टाइट्रेशन तो इक्विवेलेंट पॉइंट के पास pH 7 था. जब पूरा 50 ml NaOH पूरे 50 ml HCl के साथ डिसॉल्व होता है तो हमारा pH 7 होता है. But if a weak acid like acetic acid
completion of the titration is more than 7. This is due to the hydrolysis of the salt form. For example, in the titration of acid with NaOH, the salt form is CH3COONA, which is hydrolyzed. अब हम तीसरी बात करते हैं, जब हमने पूरा 50 ml NaOH पूरे 50 ml एसिटिक एसिड के साथ डिसॉल्व कर दिया। अगर यहाँ NaCl होता तो हमारा pH कितना आता? 7 आता। रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट, इक्विवेलेंट पॉइंट रीच हुआ तो pH कितना हुआ? 7 हुआ, तो हमारा यहाँ pH होता 7। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड कौन है? वीक एसिड है, पूरे H नहीं देता है। तो क्या हुआ, जब एसिटिक एसिड ने रिएक्शन करी NaOH के साथ, ये एसिटिक एसिड ने NaOH के साथ रिएक्शन करी तो इसने सॉल्ट बनाया CH3COONA। ये जो CH3COONA है ये हाइड्रोलाइज हुआ। ये किसमें हाइड्रोलाइज? इसमें जब वाटर मिला तो हाइड्रोलिसिस हुआ, तो इसने बनाया CH3COOH Na+ और OH नेगेटिव। ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस OH negative is greater than H in the solution, hence the solution is alkaline. Its pH is greater than 7. The pH at the equivalence point is greater than 7, that is 8.72. pH हमारा हुआ 8.72, क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज हुआ है, इसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे, H नहीं करे। अगर H होता तो अर्हेनियस ने क्या कहा था? एसिड होता। लेकिन क्या प्रोड्यूस हुए हैं? OH प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब बेस प्रोड्यूस हुए हैं, बेस है। इसका मतलब जो pH है वो 7 नहीं होगा, 7 से कम होता। एसिड है, 7 से ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है ना, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है तो pH 7 नहीं होगा। क्या प्रोड्यूस हुआ है? OH नेगेटिव, तो pH जो है 7 से ऊपर जाएगा, तो pH आएगा इसका 8.72। pH कितना आया? 8.72 pH हुआ। क्लियर? इक्विवेलेंस पॉइंट में जब HCl और NaOH का टाइट्रेशन करते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक? तो जब 50 ml HCl 50 ml NaOH के साथ मिक्स होता है तो pH 7 आता है, बट यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ सॉल्ट का तो pH हमारा अल्कलाइन तरफ गया। It is the seen that when 0.1 normal acetic acid is titrated with 0.1 normal NaOH, the pH at the equivalent point is 8.72 and not 7, as was observed in the case of titration of HCl with NaOH. The above discussion can be summarized by stating that the titration of acetic acid with NaOH differs from the titration of HCl with NaOH. अगर हम बात करें वीक एसिड है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों के टाइट्रेशन में डिफरेंस है। 3 टाइप के डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, द इनिशियल pH इज हायर, तो स्टार्टिंग का pH है वो ज्यादा है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग का pH जो है एसिटिक एसिड का वो ज्यादा है, ठीक? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन इज ग्रेटर, जो इंक्रीज हो रहा है pH टाइट्रेशन के दौरान वो भी ज्यादा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ pH इज हायर देन दिस HCl. The pH at the equivalent point is higher. इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH हायर है। तो अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड के केस में सब चीज हायर है। इनिशियल pH इज हायर, स्टार्टिंग में जब हमने कोई भी NaOH ऐड नहीं किया है तो pH इसका ज्यादा है, इसका कम है। 1 उधर चला गया, 2.87 इधर जा रहा है, अल्कलाइन साइड जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ pH ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ये देखो जिस इंक्रीज ये इंक्रीज कर रहा है ये हायर है। यहाँ पे तो 4 यहाँ आया था, यहाँ तो 4 यहीं आ गया, यहाँ तो 7.44 आया है। एंड द pH एट द इक्विवेलेंट पॉइंट इज हायर, इक्विवेलेंट पॉइंट पर pH भी ज्यादा है। These points can be clearly mentioned in the table. We can see from this table that when no NaOH is added, not even one drop of NaOH is added. So if we talk about the HCl, then
1, हमने चेक कैलकुलेट किया था, इनिशियल पीएच 1 था जब कोई भी NaOH ऐड नहीं किया है। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में जब हमने कोई NaOH ऐड नहीं किया है तो पीएच हमारा कितना हुआ 2.87, मींस इट्स हायर पीएच से स्टार्ट होगा। हायर पीएच से स्टार्ट होगा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से H नहीं देता है, ठीक है, H नहीं देगा तो 1 पीएच नहीं होगा क्योंकि ये वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच 1 होता है लेकिन ये वीक है तो इसका पीएच 2.87 से स्टार्ट होगा। हमने 10 ml NaOH ऐड किया तो जब हमने HCl में देखा था तो हमारा पीएच 1.18 था, याद है आप लोगों को? जब हम 10 ml NaOH ऐड करेंगे तो 40 ml एसिड अनरिएक्टेड रह जाएगा क्योंकि 50 में से 10 NaOH ले गया, इस 50 ml में से 10 NaOH ले गया। अब यहाँ कितना बचा 40 ml अनरिएक्टेड रह गया हमारा। रिएक्शन 20% कंप्लीट हुई। टोटल वॉल्यूम यहाँ से 10 यहाँ आ गया, टोटल वॉल्यूम 60 हो गया। हमारा पीएच देखो यहाँ 1.18 था HCl के केस में, यहाँ 3.14 है। जब ये पीएच इंक्रीज हुआ, यहाँ पे जब पीएच इंक्रीज हो रहा है तो अगर हम ये 49.9 की बात करें, 99.8% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है, वॉल्यूम इतना हो गया तो हमारा यहाँ का पीएच 4 था। जब हमने HCl की बात करी तो 4 तक पहुंचा था, लेकिन यहाँ पर क्या पहुंच गया है 7.44, इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब जो हमारा पीएच 7 है उस 7 पीएच को क्रॉस कर लिया है। जो HCl का 7 पीएच था इसको भी क्रॉस कर लिया है। और जब हम बात करते हैं कि पूरा 50 ml HCl में पूरा 50 ml NaOH ऐड हो गया, सब 50-50 हो गया, सब खत्म हो गया और वॉल्यूम पूरा हमारा 100 हो गया, 100% रिएक्शन कंप्लीट हुई तो पीएच हमारा कितना आना था 7 क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है यहाँ, ठीक। लेकिन इस केस में आया 8.72। इसका रीजन क्या है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि एसिटिक एसिड जो रहता है वो NaOH के साथ मिक्स जब करता है, NaOH जब ऐड होता है तो वो CH3COONA एक सॉल्ट बनाता है। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं और इसके कारण इसका डिसोसिएशन सप्रेस हुआ। इसके कारण जो हमारा पीएच है वो 7 को क्रॉस करके 8.72 चला गया। नाउ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है हमारा, अगर हम टाइट्रेशन कर्व में देखें तो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो 7.5 से 9.5 आता है ना। 7.5 से 9.5 हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इतना छोटा सा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। हाँ, एंड from this inflection curve it is seen that it is different from the acid base strong acid and strong base titration curve. So the indicators will show a color change on the slightly alkaline side like phenolphthalein, thymolphthalein और thymol are suitable for the titration. अगर हम इसका इन्फ्लेक्शन देखें तो वो 7.5 से 9.5 इसका इन्फ्लेक्शन आया है। तो अगर इतना छोटा इन्फ्लेक्शन है इसका मतलब 7 से कम वाला जो इंडिकेटर है वो तो इसमें यूज ही नहीं कर सकते हैं। मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज जो है वो इस टाइट्रेशन में हम यूज नहीं कर सकते, तो इसमें हमको क्या यूज करना पड़ेगा जो कि इस रेंज में कलर दे, 7.5 to 9.5 की रेंज में कलर दे। तो इसके लिए सबसे सुटेबल कौन सा हुआ? फेनोफ्थलीन हुआ। 8.3 to 10 इसका जो है वो रेंज है, तो हम फेनोफ्थलीन को यूज कर सकते हैं। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन कर्व। इसमें भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, कल हमने देखा था HCl और NaOH में ज्यादा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, लेकिन इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट कम है, कम इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े से हमको चूजी हो गए हम उसके लिए कि हम हर कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते। जो 7.5 से 9.5 की रेंज में हमको कलर प्रोड्यूस करें वो इंडिकेटर यूज करेंगे। तो हमने देखा फेनोफ्थलीन इज गुड इंडिकेटर फॉर इट, थाइमोल ब्लू को भी हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। पीएच चेंज हो रहा है एंड ml ऑफ NaOH, जिसे NaOH हम ऐड करेंगे वैसे वैसे पीएच चेंज होगा और ये इसका इन्फ्लेक्शन आएगा। इतना ही इन्फ्लेक्शन है। सो पूरे इस जो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ये जो हमने देखा, इसमें हमको 3-4 चीजें जो है वो पता चली हैं। फर्स्ट जो अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंपेयर विद द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। वीक एसिड एसिटिक एसिड,
देन द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। हमने इसको चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड वीक एसिड ले लिया है। अभी हम तो देखिए वीक में क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग को देख लिया हमने। वीक में क्या होता है, वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, दे आर पुअरली डिसोसिएटेड इन वाटर। तो क्या होगा, जब वो पुअर डिसोसिएटेड होंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनिशियल पीएच इनका ज्यादा होगा, इनिशियल पीएच इज हायर, H+ आयन जो है वो कम निकलेंगे, इनिशियल पीएच इसका हायर होगा कंपैरिजन टू HCl। अगर यहाँ HCl होता तो उसके कंपैरिजन में इनका इनिशियल पीएच हायर है। फिर अगर हम देखें तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जब हमारा यहाँ 7 आना था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब हम HCl NaOH की बात करते हैं तो हमारा pH 7 गया। जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ पूरा 50 ml NaOH is mixed with the whole 50 ml HCl, then the equivalence point is reached and the pH becomes 7. But if we talk about the acetic acid, which is a weak acid, then the equivalent point is 8. At the equivalence point, the pH becomes 8.72. The reason is that when NaOH is reacted with acetic acid, the salt is formed, sodium acetate is formed, which is a salt, and the hydrolysis of salt occurs. हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हुआ, देन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुए, जिसके कारण हमारा जो पीएच है वो अल्कलाइन हो गया। OH नेगेटिव या अल्कलाइन है तो हमारा पीएच जो है अल्कलाइन साइड चला गया एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद अगर हम देखें तो वापस से सब एक जैसा ही है, जैसा हमारा HCl केस में था वैसा ही हमारा एसिटिक एसिड केस में। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस इज सो, कि जब पूरा खत्म हो गया, पूरा 50 ml NaOH 50 ml HCl के साथ मिल गया, या 50 ml NaOH 50 ml एसिटिक एसिड के साथ मिक्स हो गया, देन कोई एसिड तो है नहीं यहाँ पर, नो HCl ना हमारा एसिटिक एसिड। सो है रहेगा कौन, 0.1 ml NaOH अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा। सेम वही 0.1 ml हम NaOH ऐड करते हैं तो कलर प्रोड्यूस होगा, इसलिए ये सेम यहां तक चेंज है। फिर अगर हम बात करें हमारे हमने कॉमन आयन इफेक्ट देखा, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है, क्यों, एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज डिसोसिएट होगा एसिड, सोडियम एसिटेट भी डिसोसिएट होगा, तो दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व मतलब होता है कर्व बिटवीन द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो भी हम ले रहे हैं, यहाँ NaOH है, जो ब्यूरेट में था वो यहाँ आएगा क्योंकि हम उसको ऐड कर रहे हैं। ये पीएच चेंज आ जाएगा, क्या पीएच चेंज हुआ, और फिर यहाँ पर बहुत छोटा सा इन्फ्लेक्शन आया है, मतलब ये इतना ही इन्फ्लेक्शन है जिसमें हम जो है हमारा इंडिकेटर की रेंज है, चॉइस ऑफ इंडिकेटर जो हमारा चूज कर सकते हैं। मिथाइल और मिथाइल रेड को इसमें यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये यहाँ पे इन्फ्लेक्शन स्टार्ट हुआ है, उनकी रेंज नीचे है, तो हम जनरली फिनोल्फथलीन थाइमोन वो टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। फिनोल्फथलीन इज बेस्ट फॉर इट and this is stable for the pH change during the titration of a strong base with a weak acid। तो इसमें कंपैरिजन भी किया है कि जब हमने HCl के साथ टाइट्रेट किया था NaOH को, और जब NaOH का टाइट्रेशन एसिटिक एसिड के साथ हो रहा है तो दोनों में क्या चेंज है। ये वाला पार्ट सेम है, वही 10 ml 20 30 ml हम ऐड करेंगे NaOH धीरे धीरे, रिएक्शन परसेंट भी सेम है, इतना ही परसेंट रिएक्शन होगा, वॉल्यूम भी सेम है जैसा उसमें था। चेंज किसमें आया, चेंज आया पीएच के टेबल में। पीएच में क्या चेंज आया, जब हमने HCl स्टार्ट किया था देन द इनिशियल पीएच इज हाई, दैट इज 1 केस हमने स्टार्ट किया था, बट इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड द पीएच इज द स्टार्टिंग पीएच इज हाई, दैट इज 2.87। यहाँ थोड़ा हाई पीएच है, हाई मतलब ये जा रहा है अल्कलाइन, उधर चला जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, जैसे जैसे हमने ऐड किया है हमारे यहाँ पीएच बहुत राइज हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे जब यहाँ 4 पहुंचा तब यहाँ पर 7.44 आया, और 7 इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब आया जब यहाँ पर जब पूरा 50 ml मिक्स हो गए, इक्विवेलेंस पॉइंट आया, रिएक्शन जस्ट कंप्लीट हुई हमारी, तो हमारा पीएच था 7, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्ट एंड वाटर बना था, वो वाले जो सॉल्ट थे NaCl वो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था, इसके कारण की यहाँ का पीएच 7 है। बट यहाँ पर ये जो
सॉल्ट बना है हमारा CH3CONA, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, जिसके कारण OH प्रोड्यूस होगा। OH मतलब अल्कलाइन, तो इसके लिए यहाँ का जो इक्विवेलेंस पॉइंट है 8.72 pH पर जाएगा। So this is all about the titration of a strong base with weak